Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying class 8th maths. Today we are going to start chapter 6 squares and square roots. Today we are going to deal with squares. We all are familiar with the shape square. It is a four-sided figure in which all the four sides are equal. But here in this chapter we will not be dealing with this shape square. Instead of this, we will be dealing with numbers called square numbers. But yes, we will begin our discussion with this shape square. We know that if the side of a square is given, then the area of a square is given by side into side. We all know this formula. You must have learnt in your smaller classes. Now, if we take the side of square as 1 unit, then the area is given by 1 into 1 equal to 1. Then if we take it as 2 units, then the area is given by 2 into 2 equal to 4. If we take the side as 3, then the area will be 3 into 3 equal to 9. If we take it as 4 units, then 4 into 4 equal to 16. If we take this one as 4, this one as 4, then this complete area will be given by 16 square units. Okay, now just have a look at these numbers. What is special about these numbers? इनमें क्या स्पेशल बात है? आप देखिए ये सभी नंबर्स हमें कैसे मिल रहे हैं जब हम दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1 into 1 is 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 और ऐसे नंबर्स जो हमें दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स. सो ऑल दीज नंबर्स आर एक्चुअली स्क्वायर नंबर्स. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, स्क्वायर ऑफ व्हाट? वी से दैट 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4. क्योंकि 4 को दो बार मल्टीप्लाई करने से 16 मिल रहा है तो हम 16 को बोलते हैं इट इज स्क्वायर ऑफ 4. इसी तरह से 9 इट इज अ स्क्वायर ऑफ 3, 4 it is a square of 2 and 1 is a square of 1 itself. So now if we multiply 5 by 5, we get it equal to 25. Here this 25 is called the square of 5. ठीक है, क्योंकि हम 5 को दो बार मल्टीप्लाई करके हमें 25 मिल रहा है इसलिए 25 को हम बोलते हैं it is the square of 5. और mathematically we also denote it as 5 raised to the power 2. This 5 is called the base and this is called the power. This is the base 5 and this is called the power of 5, and this as a whole it is read as 5 square. हम इसे कहते हैं 5 square. और यहाँ ये पावर 2 क्या इंडिकेट कर रही है? इसका मतलब ये है कि 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? 2 से नहीं. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 5 रेज टू पावर 2 मतलब 5 इंटू 2 तो ये गलत है. 5 रेज टू पावर 2 का मतलब है 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इसकी पावर है 2. समझ में आया आपको? नाउ इफ वी टेक 6 स्क्वायर, हाउ विल वी रीड इट? We read it as 6 square. And now what will be the value of 6 square? इसका मतलब है कि हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या 2 से? बिल्कुल नहीं. यहाँ इसका मतलब है कि हम 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स. सो इट इज इक्वल टू 36. और अब यहाँ पर स्क्वायर नंबर किसे कहेंगे हम? 36 को. और किसका स्क्वायर है ये? इट इज कॉल्ड 6 स्क्वायर. कैसे रीड करेंगे इसको आप? 6 square. So 36 is equal to 6 square, or in simple words we say 36 is the square of 6. समझ में आया आपको? Now we can define what is a square number. Let us look. A natural number m which can be expressed as n square. कोई एक natural number ले लिया हमने m, उसको अगर हम n square के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें where n is also a natural number, then it is called a square number. तो अगर हम m को n square फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, n square means, अब आप देखिए पावर 2 है, इसका मतलब n को हमें n से ही मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स. सो दिस मीन्स n इंटू n. अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो उस नंबर m को हम कहेंगे स्क्वायर नंबर. बात आई समझ में?
And numbers like all these numbers which we have just now studied are examples of square numbers. They are also called perfect squares. इनको हम perfect squares भी बोलते हैं. और आप देख सकते हैं 1 it is a square of 1, 4 it is 2 square, 9 is equal to 3 square, 16 is equal to 4 square. क्यों? क्योंकि इनको दो दो बार मल्टीप्लाई करके हमें ये नीचे वाले नंबर्स मिल रहे हैं. अगेन 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. ठीक है, समझ में आया? नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द नंबर 32. क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप सोचिए ज़रा. 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और 32, 25 और 36 के बीच में आता है. पर क्या यहाँ पर 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है. इसका मतलब 32 को हम ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमें 32 मिले. आप देख लीजिए, वी गेट इट इक्वल टू 8 इंटू 4. ये दोनों नंबर्स क्या सेम है? नहीं है. इसलिए 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. क्लियर है यहाँ तक आपको? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. All square numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 at units place. इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स देखते हैं और वापस आएंगे यहाँ पर इसका कंक्लूजन निकालने के लिए. वी हैव दीज नंबर्स. ये नंबर्स दिए हमें इस कॉलम में और यहाँ हम इनके स्क्वायर्स लिख रहे हैं. कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स तो लिखे हुए हैं और कुछ हम अब लिखेंगे. 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 2 स्क्वायर इट्स 4, 3 square is 9, 4 square is 16. Similarly, we have these numbers. Now we will find 7 square. कैसे निकालेंगे? 7 into 7. Yes, 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करने से हमें मिल रहा है ये इक्वल टू 49. Got it? ऐसे ही 8 square कैसे निकलेगा? 8 into 8, it's equal to 64. 9 square is 81. 9 into 9. समझ रहे हैं ना आप? Then 10 square. 10 into 10, it's 100. Similarly, 11 square, it will be equal to 121. 12 square is 144. Then we have 169 as 13 square, 196 as 14 square, 225 as 15 square, 256 as 16 square, 17 square is 289, 18 square is 324, 19 square is 361, 20 square is 400. ये सभी स्क्वायर्स एटलीस्ट टिल 20 आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बार बार यूज़ होंगे, इस क्लास में भी और आपकी हायर क्लासेस में भी. नेक्स्ट वी हैव दीज नंबर्स. 21 स्क्वायर इज़ 441, 22 स्क्वायर इज़ 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर इज़ 576, 25 स्क्वायर इज़ 625. और फिर हमारे पास है 30 स्क्वायर इट्स 900, 35 स्क्वायर इट्स 1225, देन 40 स्क्वायर इज 1600, 45 स्क्वायर इट्स 2025, 50 स्क्वायर इट्स 2500. तो ये स्क्वायर्स आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द यूनिट्स प्लेस डिजिट. इन सभी स्क्वायर्स की यूनिट्स प्लेस डिजिट यानी लास्ट डिजिट, ठीक है, वंस प्लेस डिजिट पर देखते हैं. 14965. यहाँ से देखिए 14965 एंड हियर वी हैव 0. हैव अ लुक हियर. 14965, 14965 एंड हियर वी हैव 0. यहाँ पर भी देखिए आप 14965, 0 और फिर 50. ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विद आइदर 0, 1, 4, 5, 6 और 9. इनमें से कोई एक डिजिट है वंस प्लेस पर स्क्वायर नंबर्स के केस में. एंड व्हाट एल्स वी आर सीइंग? अ नंबर हुज यूनिट्स प्लेस डिजिट इज 2, 3, 7 और 8. इट इज नेवर अ स्क्वायर नंबर. हम देख रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट्स प्लेस पे ना तो 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है. तो अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसकी यूनिट्स प्लेस डिजिट या वंस प्लेस डिजिट पर 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो हम ये देखते ही बता सकते हैं कि वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है. हाँ, इन केस वी हैव 1,
4, 5, 6, 9 or 0 at one's place, then the number may be or may not be a square number, but it's sure that if there is 2, 3, 7 or 8 in the ones place, then it is never a square number. तो अब देखते हैं, एक नंबर लेते हैं 527, बताइए क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? तो यहाँ आप देखेंगे यूनिट्स प्लेस पर 7 है, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, हम देखते ही बता रहे हैं, कुछ और कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. लेट अस हैव अ लुक एट 59. क्या ये एक स्क्वायर नंबर है? अब आप देखिए 59, ऐसा आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 59 मिले, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है. लेट अस टेक द नंबर 49. क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? Yes, it is equal to 7 square. So whenever we have 0, 1, 4, 5, 6 or 9 at one's place, then it may be or may not be a square number. But yes, if there is 2, 3, 7 or 8, then it can never be a square number if we have these digits in the ones place. Got it? Now we have some more properties. If a number has 1 or 9 in the units place, then its square ends in 1. अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी वंस प्लेस पर 1 हो या 9 हो, लेट अस राइट द नंबर्स, 1 हो, 9 हो, 11, 19, इन सब के यूनिट्स प्लेस पर 1 है या 9 है. अब इनका स्क्वायर करके देखते हैं. 1 स्क्वायर इट इज़ 1, 9 स्क्वायर इट इज़ 81, 11 स्क्वायर इज़ 121, 19 स्क्वायर इज 361. अब आप देखिए ये याद होने चाहिए. तो आप क्या देख रहे हैं, इन सब की यूनिट्स प्लेस डिजिट है 1. तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि अगर 1 या 9 है वंस प्लेस पर, तो यूनिट्स प्लेस डिजिट होगी स्क्वायर की 1. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 स्क्वायर इज 1 और 9 स्क्वायर इज 81, तो इसके पीछे भी 1 आ रहा है. तो आप देखेंगे बार बार जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 इंटू 19 करेंगे तो 81 आएगा, 9 9 ज़ा 81, तो वंस प्लेस पे हमें 1 ही मिलेगा. इसलिए आप करके भी देख सकते हैं, ऐसे केसेस में आपको यूनिट्स प्लेस डिजिट 1 ही मिलेगी. नेक्स्ट वी हैव इफ अ नंबर हैज़ 4 और 6 इन द यूनिट्स प्लेस, देन इट्स स्क्वायर एंड्स इन 6. 4 हो, 6 हो, 14, 16, इनके स्क्वायर लिख लीजिए. 4 स्क्वायर इज 16, 6 square is 36, 14 square it's 196, 16 square it's 256. तो आप देखिए इन सब की एंडिंग डिजिट 6 है और यहाँ क्या डिजिट्स हैं, 4 या 6. तो ये एक पैटर्न आप देख पा रहे हैं, ठीक है. इसी तरह से अगर हमने अभी बात की कि अगर 1 और 9 है यूनिट्स प्लेस डिजिट पर, तो स्क्वायर का वंस प्लेस डिजिट हो जाएगा 1. ये अभी हमने बात की. इसी तरह से 4 और 6 के केस में अगर वंस प्लेस डिजिट है 4 और 6, तो स्क्वायर का वंस प्लेस डिजिट हो जाएगा 6. ये भी हमने बात कर ली. इसी तरह से अगर 2 और 8 हो वंस प्लेस डिजिट पर, तो हमें पता है 2 स्क्वायर इज 4 एंड 8 स्क्वायर इज 64, तो इनके एंड में क्या आ रहा है, 4. तो इसी तरह से कोई भी नंबर अगर 2 या 8 पर एंड हो रहा होगा तो उसके स्क्वायर का भी एंडिंग डिजिट 4 होगा. सिमिलरली इफ वी हैव 3 एंड 7, 3 3 ज़ा इज 9, 7 7 ज़ा इज 49, तो ये 9 मिलेगा हमें इन दोनों पर एंडिंग नंबर्स के स्क्वायर्स के वंस प्लेस पे. फिर से समझते हैं. अगर कोई नंबर सपोज वी हैव 63 एंड फॉर 7 सपोज वी हैव 47, तो ये 3 और 7 पे एंड हो रहे हैं. अगर हम इनका स्क्वायर करें तो जो लास्ट डिजिट होगी दोनों के केस में इट विल बी 9. इन बोथ द केसेस द लास्ट डिजिट, द वंस प्लेस डिजिट विल बी 9. तो ये एक पैटर्न आप देख रहे हैं. और 5 ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट 5 ही होगी. ये ऐसा सिंगल नंबर है. एंड सिमिलरली अगर 0 है वंस प्लेस पर, तो उसके स्क्वायर में भी लास्ट डिजिट 0 होगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है. ये 5 के केस में लास्ट डिजिट है 5 और 0 के केस में लास्ट डिजिट मिलेगी आपको 0. So these are some of the properties. We take on the next one. Square numbers can only have even number of zeros at the end. Let us take one example. Suppose we find the square of
200. ओके, तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 200 को 200 से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो अब हमें क्या मिल रहा है? 2 2 ज़ा ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 zeros लग गए. तो ये हो गया स्क्वायर नंबर. इट इज़ अ स्क्वायर नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ zeros इन इट. 1 2 3 4 इवन नंबर ऑफ zeros है ना. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक 7000 लेट अस टेक इट. इसका स्क्वायर निकालते हैं. तो ये कैसे निकलेगा? 7000 इंटू 7000. 7 7 ज़ा 49, ये 7 इंटू 7 और 3 zeros यहाँ से और 3 zeros यहाँ से. ये हो गया आंसर, ये हो गया स्क्वायर नंबर. और अब इसमें कितने zeros हैं? 6 zeros. Again an even number of zeros. You can take one more example. 50 square. It will be 50 into 50. So 5 5s are 25 and 2 zeros. One from here, one from here. तो 2 zeros है. तो आप क्या देख रहे हैं कि सभी स्क्वायर नंबर्स में ये भी स्क्वायर नंबर है, ये भी स्क्वायर नंबर है और ये भी स्क्वायर नंबर है. इन ऑल द स्क्वायर नंबर्स वी हैव इवन नंबर ऑफ zeros at the end. किसी में भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं है, इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं. यहाँ पर 4 zeros हैं, यहाँ पर 6 zeros हैं, यहाँ पर 2 zeros हैं. आ रही है बात समझ में? अ नंबर विच एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ स्क्वायर नंबर. अगर हम एक नंबर लें जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस हो पीछे, सपोज आई टेक द नंबर 4000. अब इसमें 3 zeros हैं जो कि ऑड नंबर है, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा. दिस इज वेरी मच श्योर. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए. 70. इसमें भी एक ही जीरो है, ऑड नंबर होता है एक. 1 इज एन ऑड नंबर और 1 0 इज देयर. सो इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, इट इज डेडली श्योर. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर्स. देन व्हाट नेक्स्ट? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन while the square of an odd number is always odd. Just have a look at this table. Even numbers के square आप देखेंगे even है. 2 का 4 है, 12 it's 144, 22 it's 484. तो ये even numbers हैं और इनके squares भी even हैं. Let us take one odd number. Let us take this 9. It is an odd number. 81 ये भी एक odd number है. 90 again is an odd number. So 361 is also odd. 45 it is an odd number and 2025 is also an odd number. तो हम क्या देख रहे हैं कि इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर इवन आ रहा है, ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर ऑड आ रहा है. सो दिस इज अगेन वन प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वी विल बी डीलिंग विद सम पैटर्न्स, some more interesting patterns in square numbers. The first one, adding triangular numbers. Before we introduce triangular numbers, let us first come to know what are square numbers. हम इन numbers को square numbers इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम इन्हें, ये numbers, these numbers, हम इन्हें square shape में इनका dot pattern arrange कर सकते हैं. Let us try to make some patterns. हम लेते हैं नंबर 4, तो इसको हम डॉट पैटर्न में एक स्क्वायर शेप में रख सकते हैं. इसका डॉट पैटर्न क्या होगा? एक स्क्वायर शेप होगी. अगर आप इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा. नाउ इफ वी इंक्रीज वन रो एंड कॉलम, तो अब हमें नेक्स्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा. लेट अस ट्राई टू मेक इट. ये तो हो गए 4 डॉट्स. अब एक एक और रो और कॉलम हम बढ़ा दें तो ये हो गई 9 डॉट्स. अगेन इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर शेप. तो ये 9 का डॉट पैटर्न कहलाएगा. ठीक है, और ये एक स्क्वायर शेप है. नेक्स्ट इफ वी इंक्रीज वन मोर रो एंड कॉलम, देन हाउ वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये तो हो गया. एक और इंक्रीज करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. नाउ दे आर अगेन फॉर्मिंग अ स्क्वायर शेप. और आप देखेंगे कि ये हैं 16 डॉट्स. दीज आर 4 डॉट्स, दीज आर 9 डॉट्स, दीज आर 16 डॉट्स. और ये सभी क्या हैं? स्क्वायर नंबर्स. आप देखिए 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर.
2 डॉट्स हैं हर रो और कॉलम में, इसलिए ये 2 इंटू 2 स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे 3 डॉट्स हैं इन ईच रो एंड 3 डॉट्स इन ईच कॉलम, तो इसे हम कहते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर। इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 4 डॉट्स हैं इन ईच रो एंड 4 डॉट्स इन ईच कॉलम, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो हम इन स्क्वायर नंबर्स को, इनका अगर डॉट पैटर्न लें, इनको डॉट फॉर्म में लें, तो हमें एक स्क्वायर शेप मिलती है, तो इसलिए भी हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। नाउ वी टेक ऑन दिस प्रॉपर्टी और पैटर्न, yes, adding triangular numbers. Now what are triangular numbers? Numbers which can be arranged in the shape of a triangle in their dot form. We just try to make some patterns here. We take the number 1, ठीक है, ये 1, ये triangular number भी कहते हैं इसे और square number भी, it is a special number. Now we take the number 3, 1, 2 and 3. You can see one triangle is being formed when we join the 3 dots. One triangle will be formed. So 3 is a triangular number. If we increase the dots 1, 2, 3, 4, 5 and 6, again we are getting one triangle. आप देखेंगे हर साइड पर equal number of dots होने चाहिए और ये नंबर 6 को represent कर रहा है। 6 का dot pattern है ये। If we increase the dots, what we get? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो है ही हमारे पास। एक एक अगर हम डॉट इंक्रीज कर दें तो अब हमें मिलेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो नेक्स्ट नंबर हो गया 10। ऑल दीज आर ट्रायंगुलर नंबर्स बिकॉज दीज कैन बी अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल इन देयर डॉट फॉर्म, ठीक है। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 6 एंड दिस इज नंबर 10। नाउ what is the pattern which is being followed here? If we combine two consecutive triangular numbers, consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले, 1 के बाद 3, ये दोनों हो गए consecutive triangular numbers। 3 और 6 ये हो गए next pair of consecutive triangular numbers। ऐसे ही 6 और 10 ये भी हो गए triangular numbers which are consecutive। अगर हम दो consecutive triangular numbers को combine करते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा स्क्वायर नंबर। देखिए आप 1 और 3 को कंबाइन किया 4, 3 और 6 कंबाइन किए 9, 6 और 10 कंबाइन किए 16 और ये तीनों ही स्क्वायर नंबर्स हैं। अगर आप इसे डॉट फॉर्म में भी देखना चाहें तो लेट अस ट्राई टू मेक इट। लेट अस टेक दीज 6 डॉट्स 1, 2, 3, देन 4, 5 एंड 6, ये 6 डॉट्स ले लिए और अब हम ये 3 डॉट्स को इसके साथ कंबाइन करते हैं। इसको इन्वर्ट करके, रिवर्स करके अगर हम यहाँ पे लिखें तो आप देखिए बन गया ना एक स्क्वायर। एंड नाउ इफ वी जॉइन दीज डॉट्स वी गेट वन स्क्वायर इन दिस वे। एक स्क्वायर सिमिलर टू स्क्वायर, दिस इज अ रफ फिगर। तो आप क्या देख रहे हैं, whenever we combine two consecutive triangular numbers we are getting one square number। और ये क्या हो गया 3 plus 6, 9, 3 dots in each row and each column, ठीक है। तो ये हो गया इसका डॉट पैटर्न और ये न्यूमेरिकली आप देख सकते हैं। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न। देन वी हैव वन मोर पैटर्न, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। पहला नंबर हम लेते हैं 1 स्क्वायर और नेक्स्ट नंबर इसका अगला होगा 2 स्क्वायर। 1 स्क्वायर तो होता है 1 और 2 स्क्वायर होता है 4। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स आते हैं वो देखते हैं। 1 और 4 के बीच में आएगा 2 और 3। Now we are having 2 numbers between 1 square and 2 square. देख रहे हैं आप? Now let us take the next pair consecutive numbers 2 और 3. 2 square है 4 and 3 square is 9. Let us find the numbers between 4 and 9. They are 5, 6, 7 and 8. So they are 4 numbers between 2 square and 3 square. Let us write down the numbers between 3 square
एंड 4 स्क्वायर। हम लगातार दो नंबर्स ले रहे हैं, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इनके बीच में क्या नंबर्स हुए, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। So there are 6 numbers between 3 square and 4 square. Is there any pattern which is being followed here? क्या कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है यहाँ? देखिए ज़रा, जब हमारा छोटा नंबर 1 है तो 2 नंबर्स मिल रहे हैं हमें बीच में, 2 into 1 यानी कि 2 नंबर्स। जब हमारा छोटा नंबर 2 है तो हमें 4 नंबर्स मिल रहे हैं बीच में, 2 times 2 that is 4 numbers in between। जब हमारा छोटा नंबर 3 है तो हमें बीच में 6 नंबर्स मिल रहे हैं, और वो 6 कैसे मिल रहा है हमें, 2 3s are 6। तो हम देख रहे हैं कि जब हम ये छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आ रहा है उतने ही नंबर्स हमें दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में मिल रहे हैं। तो अगला हम खुद ही ट्राई करते हैं, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। लिखने से पहले हम आंसर पहले ही ट्राई करते हैं। छोटा नंबर हमारा है 4, अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल रहा है 8। तो अब चेक करते हैं कि क्या 16 और 25 के बीच में हमें 8 नंबर्स मिल रहे हैं या नहीं। लेट अस ट्राई टू राइट डाउन 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Count them, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, we are getting 8 numbers, non-square numbers between two consecutive square numbers, and this is our result. There are 2n non-perfect square numbers between the squares of numbers n and n plus 1. अगर हमारे पास एक नंबर है n और जस्ट उसके बाद वाला नंबर n plus 1, देखिए 4, ये 4 plus 1, ये 3, ये 3 plus 1, तो जस्ट नेक्स्ट नंबर लें और इनका स्क्वायर करें अगर हम, तो ऐसे केस में इनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कैसे मिलेंगे हमें, इट विल बी इक्वल टू 2n। इस छोटे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, एडिंग ऑड नंबर्स। वी विल बी एडिंग ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, let us take one single odd number, it is 1 and we know it is equal to 1 square। अब हम दो odd numbers लेते हैं, 1 और अगला odd number है 3। हमें पता है odd numbers होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 and so on। ठीक है, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे अगर हम, तो हमें मिलता है 4, और 4 क्या है, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है 4। अब अगला एक और लेते हैं हम ऑड नंबर, 1 + 3 + 5। आप देखिए ये आ रहा है 9, और 9 क्या है, 3 स्क्वायर है। एक और ऑड नंबर बढ़ा देते हैं, 1, 3, 5 और 7 ऐड करिए, 7 and 5 12, 15 16, और 16 क्या है, 4 स्क्वायर। तो यहाँ हमें एक और पैटर्न दिखाई दे रहा है। हम क्या देख पा रहे हैं कि जितने ऑड नंबर हम ले रहे हैं उतने ही नंबर का स्क्वायर इक्वल आ रहा है। देखिए आप, 3 ऑड नंबर्स लिए तो 3 स्क्वायर के इक्वल है, 2 ऑड नंबर्स लिए तो 2 स्क्वायर के इक्वल है, 4 ऑड नंबर्स लिए तो 4 स्क्वायर के इक्वल है, 1 ऑड नंबर लिया तो 1 स्क्वायर के इक्वल है। सो एवरी टाइम व्हाट वी आर सीइंग दैट द सम ऑफ फर्स्ट n मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा हो, फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो अब अगर हम 7 ऑड नंबर्स लें तो उनका सम क्या आना चाहिए, इफ वी टेक 7 ऑड नंबर्स तो उनका सम क्या आना चाहिए बताइए आप, इट शुड बी इक्वल टू 7 स्क्वायर। लेट अस ट्राई, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, these are 7 odd numbers starting from 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप ऐड करके देख लीजिए, इट इज इक्वल टू 49 एंड दिस इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम 1 से स्टार्ट करते हुए 11 ऑड नंबर्स लेंगे तो उनका सम क्या आएगा,
11 स्क्वायर। तो हमें एक्चुअली ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे ही हम 7 स्क्वायर से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये भी एक मज़ेदार चीज़ हुई ना। इफ़ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर को इस तरह से ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नाउ वी टेक ऑन द नेक्स्ट वन, अ सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स की, और उन ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकेंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक आने वाले। वी टेक वन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन ऑड नंबर 7 और इसका स्क्वायर करते हैं 49। इसको हम लिख सकते हैं 24 + 25। हो गए ना ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, और इनका सम हो गया 49। ठीक है, एक और ऑड नंबर लेते हैं 11, इसका स्क्वायर करते हैं, इट इज़ 121। इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 60 + 61। ये भी हो गए दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, लगातार आने वाले नंबर्स। 60 के बाद 61 ही तो आता है, और इनके सम के फॉर्म में हमने 11 स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसी तरह से अगर हम किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो उसे हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। टेक एग्जाम्पल ऑफ 13 स्क्वायर, ये भी ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर हो गया 169। इसको आप लिख सकते हैं 84 + 85। हो गया ना ये। तो ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट वी सी द फिफ्थ वन, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। लेते हैं एक पेयर। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक आने वाले। 12 के बाद अगला इवन नंबर 14 होगा, और अब हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं 12 × 14। इसको आप देखिए ज़रा, 12 को हम लिख सकते हैं 13 - 1, इट इज़ 12, और 14 को हम लिख सकते हैं 13 + 1, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स में नंबर्स आ गए, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? इफ़ यू डोंट नो जस्ट पे अटेंशन हियर। 13 फर्स्ट ब्रैकेट का ये नंबर लिख लिया हमने 13, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे सेकंड ब्रैकेट से 13 + 1 से। इसके बाद इसका सेकंड नंबर लेते हैं जो है -1, और अब इसको पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 13 + 1। ठीक है, पहले इस 13 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर -1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स बाय मल्टीप्लाइंग 13 × 13, इट इज़ 13 स्क्वायर। हमने पढ़ा अभी 13 × 13, 2 बार 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको पावर नोटेशन में लिख सकते हैं 13⁻², क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स 13 मल्टीप्लाई हो रहा है। देन प्लस 13 × 1, इट इज़ 13। इस 13 को इससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस 1 से भी। देन -1 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस इंटू प्लस, इट इज़ माइनस, सो -1। अब आप ये 13 - 13 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच गया 13 स्क्वायर -1, एंड 13 स्क्वायर इज़ 169, -1 इट इज़ 168। तो अब हमने क्या किया? विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स, हमने इस स्क्वायर की मदद से ये डायरेक्टली ही आंसर लिख लिया। यहाँ तो हमने बड़ा सारा कैलकुलेशन शो किया है, आपको समझ में आया इसलिए, वरना हम इसको भी स्किप करके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, लेट अस टेक 2 ऑड नंबर्स दिस टाइम, 15 × 17। ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। 15 कैन बी रिटन एज 16 - 1, एंड 17 कैन बी रिटन एज 16 + 1। अब डायरेक्टली कर लीजिए आप, 16 स्क्वायर -1, 16 स्क्वायर इज 256, -1 इट इज़ 255। आप देखिए हमने दो नंबर्स को विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग इस स्क्वायर की मदद से डायरेक्टली आंसर लिख लिया 255। आप चेक कर सकते हैं 15 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 255 ही मिलेगा। सो इन जनरल व्हाट वी कैन से, इफ़ वी हैव a - 1 एंड a + 1, जैसे यहाँ 16 - 1, 16 + 1, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको a² - 1।
16 स्क्वायर -1 और इससे हमने इजीली ये आंसर निकाल लिया. ठीक है, वी टेक ऑन द नेक्स्ट पैटर्न. वाओ, दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन. सम मोर पैटर्न्स. ओके, 1 स्क्वायर इट इज गिवन इक्वल टू 1. 11 स्क्वायर इट इज गिवन इक्वल टू 121. होता भी है ये 121. 111 स्क्वायर, अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया. 1 2 3 और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर 2 1. ये 4 टाइम्स 1 है, तो आप देखिए 4 आ रहा है सेंटर में, 4 तक जा रहे हैं हम. 1 2 3 4 और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1. ये 5 टाइम्स 1 है, तो आप देखिए 5 तक जा रहे हैं हम बीच में. 1 2 3 4 5 4 3 2 1. ये कितने 1 है? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 1s. और यहाँ आप देखिए 8 तक पहुँच रहे हैं हम सेंटर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो है ना ये मज़ेदार पैटर्न. अब एक हम खुद ट्राई करते हैं. लेट अस टेक 6 1s. 1 2 3 4 5 6. इसका स्क्वायर निकालते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 1s हैं तो हम 6 तक चलेंगे. 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर 5 4 3 2 1. ये आ गया आंसर. तो विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दिस बिग नंबर बाय इटसेल्फ, एक तरीका तो है कि हम इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकालें, और यहाँ हम इस पैटर्न की मदद से बिना इन दो इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करे बगैर, अपने आप से मल्टीप्लाई करे बगैर ही हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया है इस पैटर्न की मदद से. है ना ये इंटरेस्टिंग पैटर्न. एक और है हमारे पास, दिस वन. 7 स्क्वायर इज 49. 67 स्क्वायर इज 4489. अब ये बड़ा हो गया 667 स्क्वायर और ये हो गया 4,44,889. आप क्या पैटर्न देख रहे हैं? जितने 6 हैं उतने ही 8 हैं. 1 6 1 8, 2 6 2 8 और जितने 6 हैं उससे एक ज़्यादा 4 है. 2 6 3 4s, 3 6 4 4s. ठीक है, और लास्ट में तो 9 है ही. तो ये एक पैटर्न इसमें दिख रहा है. एक हम अपने आप करते हैं. यहाँ पर हमारे पास 4 6 है, यहाँ 5 6 है. हम 6 टाइम्स 6 लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7. इसका स्क्वायर कर रहे हैं विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय इटसेल्फ. इसको इसके खुद से ही मल्टीप्लाई किए बिना ही हम इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं इस पैटर्न की मदद से. तो आप देखिए कितने 6 हैं? 6 टाइम्स 6, तो हम 4 लिखेंगे 7 टाइम्स. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इसके बाद कितने 8 आएंगे? जितने 6 हैं उतने 8. 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 9. तो हमने यहाँ कितनी आसानी से डायरेक्टली ही इसका इतना बड़ा लंबा सारा स्क्वायर लिख दिया विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग दिस नंबर बाय इटसेल्फ, just with the help of this pattern. So these were square numbers, their properties and some patterns in square numbers. In our next class, we will be doing exercise 6.1. Till then, go through these patterns and yes, learn the squares of numbers at least till 20. Till then, goodbye.